हेलो। हाँ आकांक्षा, आवाज आ रही है क्या? हो सर. जरा व्हिडिओचा बी आवाज बघा. हा येतोय का जरा? हो. व्हॉल्यूमचा आवाज येतोय का याचा? नाही सर. आवाज नाही ना येत? नाही. ठीक आहे ठीक आहे. भुका लागल्यात. ते चांगले ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर. ओके, तो ये आज हम ये टेस्ट लेने वाले हैं. In last lecture we discussed that is a how to determine elements. Okay, so we are using that is a sodium fusion test. This test is also called as a Leysen test. This test or this test is there in your syllabus in the theory also, and it is also there in the practical also. Okay, so it is present in a theory as well as in a practical also. So first read this and then we will see the live video of this test. यानी इसका मतलब यहाँ पे आपका ये थ्योरी भी इसमें कवर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकली भी ये कवर हो जाएगा. इसलिए ये कंटेंट थोड़ा ठीक तरह से पढ़ के लो. इसके ऊपर एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा. थ्योरी में लेसेंजन टेस्ट क्या रहती है, क्यों परफॉर्म करते हैं, ये सब. ओके, तो ये थोड़ा ठीक तरह से रीड करके ले लो. तो टू डिटरमाइन एलिमेंट्स we are using that is a sodium fusion test. Okay, so to determine the element, for this we are using sodium fusion test. So all organic substances generally contain carbon, hydrogen, except carbon disulfide, carbon tetrachloride as elements. There is a no test, special test for oxygen, and following test describe the detection of nitrogen, sulfur and halogen. So by default we know that organic compound generally contain carbon and hydrogen, and as well as present there is a oxygen. Okay, also oxygen is present in your compound. For carbon and hydrogen there is a test. Okay, but organic compound generally contain carbon and hydrogen, so there is a no need to perform test. And for oxygen there is a no special test for oxygen. Other than carbon, hydrogen and oxygen, other elements are other than carbon, hydrogen, oxygen, this nitrogen, sulfur and halogen is also present in your organic compound. So for the detection of nitrogen, sulfur and halogen,
we are generally using this sodium fusion test, or it is called as a Lassanger test. So what that test is there? So take a sodium fusion tube. ये स्मॉल ट्यूब रहती है आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब थोड़ा 20 ml 15 ml का रहता है. हम इसमें 1 ml और 2 ml 1 ml ही रहती है. तो take a sodium fusion tube, small tube, and place a very small dry piece of sodium metal in it. तो हम क्या करते हैं, जो सोडियम मेटल है वो सोडियम मेटल कट करते हैं, and that sodium metal place in a sodium fusion tube. Then after that, then heat the tube till sodium get fused. Then after that, we are heated that tube till the sodium get fused. Pull the tube and place a little substance, solid or liquid in it. आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा वो कंपाउंड क्या करना है, सोडियम फ्यूजन ट्यूब हीट होने के बाद उसको कूल करना है. कूल करने के बाद उसमें प्लेस अ लिटिल सब्सटेंस इन इट. देन हीट द ट्यूब जेंटली. फिर उसके बाद हम फिर से उसे हीट करते हैं. If vigorous reaction occurs, remove the flame, allow the reaction to stop. अगर आपकी रिएक्शन फास्ट है, vigorous है, that time we are removing the tube, allow the reaction to stop, then add further little quantity of the substance and continue heating to redness for 3 to 4 minutes. Okay, तो 3 to 4 minutes क्या करते हैं हम, वो उसको हीट करते हैं. तो add further little quantity of the substance and continue heating to redness for 3 to 4 minutes. Okay, then break the hot tube in a 5-10 ml distilled water that taken in a evaporating dish. Then we are taking evaporating dish, and that evaporating dish we are added 5 to 10 ml distilled water. See here, we are using only distilled water. Do not use tap water for this reaction. Now why, इसका क्वेश्चन में आपको इसका आंसर में आगे बताने वाला हूँ. Why we are using distilled water and why we are not using tap water. Okay, आपको ये समझ में आ जाएगा. ये जो हम नाइट्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन टेस्ट के समय आपको इसका आंसर मिल जाएगा. So we are using that is a 5 to 10 ml distilled water, and then we are break this hot tube in a distilled water that taken in an evaporating dish. In this way break at least 2 tubes. Okay, 1 tube भी break कर सकते हो, नहीं तो 2 tube भी break कर सकते हो. It depends upon यानी आपको कितना टेस्ट के लिए सैंपल चाहिए. ओके, कॉन्सेंट्रेट द सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग एंड फिल्टर इट. फिर उसके बाद हम उसको ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके, सो दैट वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द sample. So concentrate the solution by boiling and filter it. This filtrate is called as a sodium fusion extract. Taste the filter for presence of nitrogen, sulfur, and halogen as follows. So in order to detect the elements nitrogen, sulfur, halogen in ionic form, the organic compound is fused with a sodium metal. It convert them into soluble sodium salt, which can be analyzed easily. Okay, तो ये आपका लेसिंजर टेस्ट है. एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा. सोडियम फ्यूजन टेस्ट है, ये आपके 11th के बुक्स में भी प्रेजेंट है. ये टेस्ट सेम है, इसके ऊपर आपको सीईटी में क्वेश्चन भी आए होंगे. ओके, तो ये आपका सोडियम फ्यूजन टेस्ट और लेसिंजर टेस्ट. समझ में आया ये टेस्ट. शॉर्ट में क्या करना है आपको कि आपको एक सोडियम फ्यूजन ट्यूब लेना है, जो स्मॉल ट्यूब रहती है. उसमें क्या करना है, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल ऐड करना है. फिर उसके बाद उस ट्यूब को हीट करना है. Then what will happen, that sodium metal fuse. Okay, sodium gets fused. Then cool the tube and place a little substance in it. जो आपको सब्सटेंस दिया जाएगा उसमें वो सब्सटेंस उसमें ऐड करना है. ओके, फिर उसके बाद उसको फिर से हीट करना है. अगर आपकी रिएक्शन विगरस है, फास्ट है, उस समय वो ट्यूब बाहर निकलना है, उस रिएक्शन को सेटल होना है. Allow the reaction to stop and then add further little quantity of the substance and continue heating to redness for 3 to 4 minutes. फिर उसको फिर से हीट करना है 3 to 4 minutes till that tube become red hot. Okay, then after that break this tube. हम उस ट्यूब को ब्रेक करने वाले हैं जो हम इवेपोरेटिंग डिश में, उस इवेपोरेटिंग डिश में आपका 5 to 10 ml डिस्टिल्ड वाटर रहेगा. और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट द सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग एंड फिल्टर इट. हम उसको कॉन्सेंट्रेट करने वाले सॉल्यूशन हीट बॉइल करके, एंड फिर उसके बाद उसको फिल्ट्रेट करेंगे. And this filtrate is called as a sodium fusion extract. This is also called as a Lassanger extract. And we are using this filtrate for the detection of nitrogen, sulfur, and halogen. Okay.
तो ये, तो अभी इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट है, व्हाई वी आर यूजिंग सोडियम मेटल इन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और व्हाई वी फ्यूज दिस सोडियम मेटल विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका रीजन उन्होंने बताया। अगर आप यहाँ पे देखोगे आगे, जो नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए हम जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं और केमिकल यूज कर रहे हैं, ये PSO4, NaOH, ओके, ये PSO4, NaOH, HCl, डाइल्यूट TSO4, ये एलिमेंट क्या है? ये सभी एलिमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम क्या डिटेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यहाँ पे क्या रहेगा? आपका कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट है वो सभी क्या है? दैट इज आयोनिक फॉर्म, यानी ये PSO4, NaOH, HCl, H2SO4। और हमारा पहला रूल मालूम है कि जैसे दैट ऑयल कैन नॉट सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज ऑयल हैविंग अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड वाटर हैविंग अ दैट इज अ आयोनिक बॉन्ड, और कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड पोलर कंपाउंड है। ओके, अभी ये कंपाउंड आपका क्या है? ये PSO4, 1 ड्रॉप ऑफ NaOH, HCl, ये आयोनिक कंपाउंड है दैट इज हैविंग सम पोलैरिटी। So polar compound dissolve in a polar solvent, non-polar compound dissolve in a non-polar solvent. अभी आपके organic compound that is a non-polar in nature because it having a covalent bond. It cannot soluble in a polar compound. Okay, polar solvent. Polar solvent में ये soluble नहीं हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? These elements that fuse with your organic compound is fused with a sodium metal, then what will happen? This sodium metal that fuse with the organic compound and that it's converted into ionic form, यानी इसमें क्या होगा? It convert them into soluble sodium salt, यानी उसका sodium salt form हो रहा है, यानी सोडियम एसिटेट, यानी Na+C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी ये इसका क्या हो रहा है? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। ओके, पोलर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड इसलिए ये क्या हो रहा है? वो पोलर कंपाउंड देन इट विल सॉल्युबल इन दिस पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस नॉन पोलर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म बाय यूजिंग सोडियम मेटल। ओके, by fusing with the sodium metal, what will happen? It converted into sodium salt, and that sodium salt is present in a polar form, and that's why we are performing this Lessingen test or sodium fusion test in organic qualitative analysis. ये आपका रीजन है इसका। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि why we are performing this test, what is the importance of this test। तो आपका रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट फॉर्म में रहते हैं, और हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं, कंपाउंड यूज कर रहे हैं डिटेक्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, दिस ऑल केमिकल्स आर प्रेजेंट इन आयोनिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। So non-polar compound cannot soluble in a polar form. So by using sodium metal, this organic compound is converted into sodium salt. It means it converted into polar or ionic form. Then it will soluble in a polar solvent. Okay, ये इसका आंसर है। अब ये रहेगा डिस्टिल वाटर का। ये जब हम ये 3 टेस्ट देखने वाले हैं उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसमें कोई डाउट? हेलो आकांक्षा, तन्वी, समझ में आया क्या आप लोगों को? मीनल, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक वीडियो मैंने लास्ट लेक्चर में गूगल क्लासरूम पे भी मैंने उसका लिंक शेयर किया था, आप लोग ये वीडियो भी देखो। अभी इसका आवाज नहीं आ रहा है, आएगा लेकिन
हेलो हेलो, यस सर। हाँ समझ में आया ना? आप लोगों को इसका लिंक मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर किया है, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं ये टेस्ट पूरा, सोडियम फ्यूजन टेस्ट। ओके, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है ये भी मैंने गूगल क्लासरूम पे इसके नोट शेयर किए है। एक्चुअली आपको ये प्रैक्टिकल में भी प्रेजेंट है। तो ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट हमें यहाँ पे उन्होंने थोड़ा 2 स्टेप एक्स्ट्रा दिखा है, उतना जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। ये वाला कंटेंट है लेसेंजर टेस्ट, इसके रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको बताया कैसे कैसे क्या फॉर्म हुआ है, कौन कौन से यहाँ पे केमिकल ऐड किए नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए, कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, ये वाला। फिर रिएक्शन विथ सल्फर, रिएक्शन विथ हेलोजन। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन हम इतना ही परफॉर्म करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी समझ में आ जाता है इतना। और फिर हमारे यहाँ पे कंक्लूजन रहता है, द गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन, जो भी आपके एलिमेंट है, अगर सपोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बाकी के नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन एब्सेंट है तो ये वाला आ जाएगा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये कंक्लूजन आ जाएगा, सल्फर आएगा तो ये कंक्लूजन, हेलोजन आएगा तो ये कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आता है यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपका लैसिजन टेस्ट का प्रैक्टिकल है। अभी हम यहाँ पे लैसिजन टेस्ट के ये थ्योरी में भी प्रेजेंट है, तो हमने ये थ्योरी में भी लिया है कंटेंट। सेम हम ये प्रैक्टिकल में भी लेने वाले हैं। जब आपका ये प्रैक्टिकल होगा तो ये सेम आपको लैसिजन टेस्ट में बताने वाला हूँ, और यहाँ से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है आपका, तो इसमें क्या है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बाइनरी मिक्सचर। तो अभी आपको सेपरेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस फिर ये सब बताया है। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ बाइनरी मिक्सचर, आपको नेचर फाइंड आउट करना है। फिर उसका टाइप फाइंड आउट करना है, एसिड है, फिनॉल ए, बेस है क्या न्यूट्रल है इसे। ओके, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कंक्लूजन, टाइप ऑफ द गिवन मिक्सचर इज दिस। सेपरेशन आपको नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद फिर आपका लैसिजन टेस्ट का एक एग्जाम में बताया है कि क्या रहता है थियरी, तो ये आपको लैसिजन टेस्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये ऐसा आपका प्रैक्टिकल में, आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेने वाला हो इसमें फिर से पॉइंट रिपीट हो जाएगा। अभी थियरी में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी आपको ये टाइप के टेस्ट सब मालूम होने चाहिए, एसिड कैसे डिटेक्ट करते हैं, फिनॉल कैसे डिटेक्ट करते हैं, बेस कैसे डिटेक्ट करते हैं। ओके, न्यूट्रल के लिए क्या टेस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है केमिनोफोर टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट। ओके, ये एक थ्योरी रहने दो। सैचुरेशन ऑफ एलिपेटिक एंड एरोमेटिक नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एमपीओ वगैरह, ये तो आपको प्रैक्टिकल में रहेगा। और फिर उसके बाद लैसिजन टेस्ट थ्योरी में प्रेजेंट है, इसके रिएक्शन सभी थ्योरी में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, इसके टेस्ट भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ये भी थ्योरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी मैं स्टॉप करता हूँ, थोड़ा मुझे दूसरा लेक्चर है, इसलिए मैं अभी ये ज्यादा नहीं ले सकता। तो आप लोग ये वाला गूगल क्लासरूम पे मैंने ये शेयर किया, आप वहां से ये कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप करूँ क्या?